لاہور کی سیاسی صورتحال پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی راولپنڈی میں اہم ملاقات کے بعد رات گئے لاہور آمد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی گزشتہ شام ہنگامی طور پر راولپنڈی پہنچے تھے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ مسلم لیگ ق اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ گزشتہ رات لاہور پہنچنے کے بعد پرویز الہی کی پارٹی رہنماؤں سے مشاورت ہوئی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ پرویز الہی نے عمران خان کو بھی اسمبلیاں توڑنے میں جلدی نہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ نون لیگ بھی چودھری شجاعت کی جانب سے ٹھوس بات کرنے کا انتظار کر رہی ہے اور اس انتظار میں ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چودھری شجاعت بھی پرویز الہی کو قومی امور پر مشورے دے رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی راولپنڈی میں اہم ملاقات کے بعد رات گئے لاہور آمد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی گزشتہ شام ہنگامی طور پر راولپنڈی پہنچے تھے۔ مسلم لیگ ق اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ میاں عامر جمیل لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میاں عامر، آگاہ کیجیے گا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی، مونس الہی اور پرویز الہی اسمبلی نہ توڑیں، ایسا جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ گمان بھی کیا جا رہا ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل حسام، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی راولپنڈی میں اہم ملاقات کے بعد گزشتہ رات کو ہی واپس لاہور پہنچ گئے تھے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی گزشتہ شام ہنگامی طور پر جو ہے وہ پنڈی پہنچے، جہاں ایک اہم ملاقات کے بعد واپس لاہور پہنچ چکے ہیں، جبکہ مسلم لیگ ق اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہمارے ذرائع سے بتائی جا رہی ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ رات جو ہے لاہور پہنچنے کے بعد چودھری پرویز الہی نے خصوصی طور پر پارٹی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس بلایا، جس میں جو ہے پرویز الہی اور مونس الہی چاہتے ہیں، جس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ پرویز الہی اور مونس الہی یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو بھی اسمبلیاں توڑنے میں جلدی نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ نون لیگ بھی چودھری شجاعت کی جانب سے ٹھوس بات کرنے کے انتظار میں ہے، جبکہ چودھری شجاعت بھی پرویز الہی کو قومی امور پر مشورے دے رہے ہیں، یہ ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں، جبکہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ آج 17 دسمبر کو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی توڑنے کا بھی اعلان کریں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، جیسے ہی وہ ملاقات کرنے کے بعد ان کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا چودھری پرویز الہی کا ان کے گھر میں، اس کے فوراً بعد ان کے دونوں صاحبزادے مونس الہی اور حسین الہی ضمان پر پہنچے، جہاں پر انہوں نے اپنے والد کا پیغام جو ہے ان تک پہنچایا۔ عمران خان کے پاس جو رات کو 2 بجے کے بعد تقریباً 2 بجے تک وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے، تو وہاں پر 20 منٹ ان کی ملاقات جاری، جس میں انہوں نے جو میسج دیا، لیکن جو ہمیں جو چیز سامنے آئی ہے، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں صاحب، وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اور قافلی کے درمیان ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے میں ڈیلے کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج جیسا کہ ایک جلسہ بھی منعقد کیا جا رہا ہے، آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے لبرٹی مارکیٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ خطاب کریں گے، جہاں پر وہ آج اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے باقاعدہ سے ایک اعلان بھی ان کا متوقع ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اسمبلیاں آج وہ توڑنے کا اعلان کرتے ہیں یا اس پر یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو بیک ٹو رابطے ہیں اور اس کے علاوہ جو کاف لیگ جو ان کے ساتھی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے درمیان جو اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے، جس کے باعث جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے آج جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ آج اپنے سینئر رہنماؤں سے جو ہے وہاں پر زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ پر مشاورت بھی کریں گے، اور اس میں یہی فیصلہ کیا جو کہ کل رات گزشتہ رات جو ملاقاتیں ہوئی ہیں لیٹ نائٹ، اس میں جو ہے وہ سارا اپنے جو سینئر رہنماؤں کو اس حوالے سے اعتماد بھی مل لیں گے۔ اور عامر جمیل، آپ نے بتایا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے میں ڈیلے کیا جائے، یہ کوشش کاف لیگ کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو یہ کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کاف لیگ کی جانب سے بھی یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی چودھری پرویز الہی کا بیان بھی سامنے آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان زخمی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اسمبلی توڑ دی جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم والے بھی اسی بات پر ہیں کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کی نہ بات کریں اور بیٹھ کر ٹیبل پر بات کریں، جو ان کے مطالبات ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں ساتھ ساتھ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو عمران خان کی جانب سے بھی پچھلے دن ایک بیان واضح طور پر کلیئر آیا تھا کہ اگر ہم اس وقت ٹیبل ٹاک کریں گے جب ہمیں ایک الیکشن کی طریقہ جو اعلان کیا جائے گا وفاقی حکومت کا، پھر ہم آپ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، آج جو ہے ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سینئر قیادت جو ہے زبان پر پہنچے گی اور پہنچنے کے بعد ان سے مشاورت کی جائے گی۔ عمران خان انہیں ساری بات جو رات کو ہی ہے اس حوالے سے اعتماد میں لیں گے اور پھر وہ فیصلہ ان کی سینئر قیادت کرے گی کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس میں مزید وقت لیکن میاں عامر دیا جمیل، جائے اس گا۔ بات کو کیوں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، کیوں ڈیلے
की बात की जा रही है, क्यों बार बार इस पर मुशावरत हो रही है? अगर तो काफ लीग पीटीआई की इत्तेहादी है और इतने पुरुमीद हैं ये लोग कि दोबारा से इलेक्शन 2/3 की अक्सरियत आ जाएगी, तो काफ लीग तो फिर से हुकूमत में आ जाएगी। परेशानी किस बात की है? जी बिल्कुल, देखें जी, इसमें पॉलिटिकल मामलात हैं, सियासी ये मामलात होते हैं। इसमें ज़ाहिर है दूसरे स्टेक होल्डर्स की भी बात माननी पड़ती है। अगर काफ लीग के साथ कोई अटैच है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो उनके इत्तेहादी जमातें अटैच हैं, तो उनकी आपस में मशावरत के साथ जो है वो सारी बातें होती हैं। लेकिन इस वक्त जैसा कि इस वक्त जो है ये एक डेडलॉक सामने आया है कि इस वक्त जो हमें ज़राए बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार है। लेकिन साथ साथ हमें ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी फिरोज़ किसी भी वक्त ज़मान पार्क उनकी आमद हो सकती है और उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान से होगी। और उसके साथ साथ सीनियर क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी आज ज़मान पार्क। आमिर जमील, आपने डेडलॉक की बात की और अहम मुलाकात जो आज होने जा रही है उसके हवाले से भी आप हमें बता रहे हैं वक्तन फ़वक्तन, तो ये बता दीजिएगा, मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी पुराने सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सियासत में कई सालों से बैठे हुए हैं, पीडीएम की जमातें भी बहुत पुरानी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ताने बाने वहाँ मिल रहे हैं, कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई ऐसा जो थर्ड पार्टी है जो दोनों से जिसकी दोस्ती हो उसके जरिए पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? क्या चल रहा है ये? जी बिल्कुल इस्लाम, देखें सियासत में हरफ आखिर कोई बात नहीं होती। देखें बैकडोर राब्तों का सिलसिला, जैसा कि कैपिटल टीवी ने पहले भी बताया था कि बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो यही चाहते हैं कि आपस में जो अपोजिशन और हुकूमत बैठकर आपस में टेबल टॉक करे और जो मुतालबात है जायज़ तरीके से मुतालबात को हल किया जाए, अफ़वाम तफ़हीम के साथ मुतालबात हल किए जाए और सियासी जो अदब इस्तेहकाम जो है वो पैदा किया जा रहा है उससे बचा जा सके। तो इस वक्त जो बैकडोर राब्तों का भी सिलसिला जारी है आपके सामने, जैसा कि गुज़िश्ता रात चौधरी फिरोज़ के हंगामी दौरे पर अचानक जो है पिंडी पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक अहम मुलाकात भी की। उसके बाद फिर उनके साहबजादे रात को 2 बजे जो ज़मान पार्क पहुंचे, उन्होंने चेयरमैन इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी मुलाकात की और उनको भी सारा पैगाम जो है अपने वालिद चौधरी फिरोज़ का बताते। लेकिन आमिर जमील, आपकी इस बात से मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने बात की कि कोई भी फैसला हतमी नहीं होता, सियासी जमातों का बैकडोर राब्ता जारी है, तो बैकडोर राब्ते जितने भी हो रहे हैं या जो भी सियासी गर्मा गर्मी इस वक्त फैली हुई है या इस वक्त रोनुमा हो रही है लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में, वो तो आवाम की ताकत के बलबूते पर ही हो रही है। तो आवाम के साथ जो कुछ होता रहा है और आवाम सड़कों पर आती है, फिर पीछे से फैसले हो जाते हैं, फिर आवाम रैलियों की सूरत में निकलती है, पूरा पूरा हफ्ता आवाम जो है वो सड़कों पर होती है और उसके बाद कोई फैसला अंदर बैठकर हो जाता है, तो ये कब तक चलेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है साहब। देखें इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, असम्बलियों को तहलील के हवाले से एक तारीख देने जा रहे हैं। तो दूसरी जानब देखें पिछले 11 दिनों से हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में रैलियों का सिलसिला जारी है। एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था वफाक हुकूमत के, वफाक हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो है कबल अज़ वक्त इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करे। तो देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल, आवाम तो बेचारी इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, जो उनके वर्कर हैं, वो भरपूर तरीके से अपनी तंजीम के साथ अपने लीडर के साथ हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और बाकायदा से उनका ये भी मौक़िफ़ है कि जैसे हमारा लीडर इमरान खान हमें कहेगा हम उसकी बात पर आमीन करेंगे। तो देखना ये है अब जिस तरह सूरत हाल अगर हम देखें इस वक्त माशी मामला देखें आसाम, तो उस माशी मामला जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब है। देखा जाए तो इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि घंटों की बुनियाद पर महंगाई का सिलसिला बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आमिर जमील, आम आदमी की बात अगर की जाए तो जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, जब रिजीम चेंज हुई थी, तो ये कहा गया था जी तजर्बाकार लोग आ गए तो अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो मजीद बदतर से अबतर होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल हसाम, आपकी बात ठीक है। पीडीएम की हुकूमत की जानब से जो इनके इत्तेहादी हुकूमत थी उसकी जानब से बड़े बड़े बुलंद बांग दावे सामने आ रहे थे, लेकिन उन दावों की जो है वो अब कली खुलनी शुरू हो चुकी है। इस वक्त जो मामला है, इस वक्त हम पेट्रोल की बात करें, बिजली की बात करें, गैस की बात करें, चाहे कोरोनोज की बात करें, कोई भी किसी भी चीज़ की बात करें हम, तो उस वक्त आप देखें उसमें हर चीज़ में महंगाई की तरफ जा रही है। जब हम हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है, पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो, तो मियां आमिर जमील इसीलिए तो आवाम सड़कों पर निकली, 25 मई को भी पिट गई और फिर घरों को वापस चली गई, दोबारा निकली, फिर पिट पुट के वापस आ गई। तो ये सब कुछ तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। तो क्या अगर अब विफाक ने जैसा किया इस्लामाबाद में और लाहौर में 25 मई को, तो क्या पंजाब हुकूमत भी पीडीएम के जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ ये करेगी या इनकी जानिब से कोई मेजॉरिटी दिखाई जाएगी? जी देखें बिल्कुल पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें, चौधरी फिरोज़ एक जो है समझदार सियासतदान है और उनकी कोशिश ये होती है कि मामला जो है अफ़वाम तफ़हीम के साथ बैठ कर टेबल टॉक करके हल किया जाए। तो आज उनकी जैसा कि कल रात से भी उनकी बल्कि पिछले 2 हफ्ते से उनकी यही कोशिश है कि असम्बली तहलील ना की जाए। असम्बली तहलील करने से बेहतर है कोई ऐसा हल तलाश कर लिया जाए ताकि जिसमें आवाम को फ़ायदा हो, क्योंकि इस वक्त आवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है और इस वक्त आवाम को सियासी लड़ाई की ज़रूरत नहीं, आपस में
सियासतदानों की लड़ाई की जरूरत नहीं, बल्कि आवाम को इस वक्त रिलीफ की जरूरत है। आवाम चाहती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मियां आमिर जमील, आपने कहा कि आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है। कैपिटल टीवी, मैं आप समेत हम सब बात करते हैं कौम की, मुल्क की, सल्तनत की, और जो भी रिलीफ है वो कौम के लिए है, मुल्क के लिए, सल्तनत के लिए, उसका हम भी हिस्सा हैं। तो अगर हम इसी ज़ुमरे में इस बात को आगे बढ़ाएं और देखें तो क्या अभी तक जितना भी सियासी टेम्परेचर हाई हुआ, लो हुआ, जो कुछ भी होता रहा पिछले 8 महीनों में, कौन सा ऐसा बिल पास करवा दिया वफाकी हुकूमत ने जिससे आवाम को कोई रिलीफ मिल सके? सिर्फ 10 रुपये जो है वो पेट्रोल के कम हुए, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा कमी हो रही है पेट्रोल प्राइसेस की, लेकिन हमारे मुल्क में तो कमी नहीं हो रही। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप देख लें, कोई रिलीफ का ऐसा पैकेज अनाउंस हुआ हो या कोई ऐसा बिल अनाउंस हुआ हो या पास हुआ हो जिससे आवाम कोई सुक्का सांस ले सके? जी बिल्कुल साहब, आपकी बात ठीक है। जैसा कि इस वक्त तो जो सबसे अहम मसला है हमारे मुल्क का, सियासत से बढ़कर जो मसला है इस वक्त, तमाम सियासतदानों को, चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे वो गवर्नमेंट में हैं, उनको चाहिए एक टेबल पर बैठकर खुसूसी तौर पर जो माशी हालात हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनके साथ आपस में मशावरत के साथ ऐसा लाहेमल तय किया जाए ताकि जिस हम बंवर में फंसे हुए हैं, जिस मुश्किल में हमारा मुल्क इस वक्त फंसा हुआ है, जो कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, इस वक्त देखा जाए तो महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बल्कि घंटों की बुनियाद पर बढ़ रही है। तो उसके और इस वक्त जो सियासतदान है, जो अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके अवानों में लाती है, उनको चाहिए कि आया इख्तियार की जंग छोड़ें, कुर्सी की जंग छोड़ें, बल्कि आपस में बैठकर अफाम और तफहीम के साथ एक SOP तय करें, ऐसे मामला तय करें ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ मिल सके। क्योंकि अवाम के वोटों से लेकर ये ऐवान में मुंतखब होकर असम्बली में पहुंचते हैं, सेनेट में पहुंचते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये अब अवाम को छोड़ दे। तो इनको चाहिए जो है इस वक्त अवाम जो उस मुश्किल से दो चार है। अच्छा मियां आमिर जमील, आपने महंगाई कम ना होने का जिक्र किया, आपने कहा महंगाई बढ़ रही है, हर मिनट के हिसाब से बढ़ी है, हम भंवर में फंस चुके हैं। तो क्या हमारी माशी टीम कमज़ोर है? क्या हमारे मुल्क में जो एनालिस्ट हैं वो कमज़ोर हैं? क्या हमारे यहाँ जो टीम का बनाना, उनकी सिलेक्शन, लोगों की जो छांटी है और जो हमारा टैलेंट है उसकी कमी है, या फिर ये फुकदान जो है वो और किसी साइड से आ रहा है? आसाम देखें, इसमें दो चीजें हैं। एक तो देखें जी, आपका सियासी अदब इस्तेहकाम वो बहुत काउंट करता है। अगर आपका सियासी मामला बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर जो है, कोई भी बंदा जो है पाकिस्तान पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर काउंट किया जाता है। जैसा कि आप IMF से कर्जा लेते हैं तो IMF ने भी अपनी मर्जी के मुताबिक आपको शराइत पर जो है कर्जा दे रहा है। तो इसमें देखें, इसमें जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा, सियासी मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक जो है हमारे माशी मामला बेहतर नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए, अपोजिशन को चाहिए, वो एक टेबल पर बैठ पर जो सियासी इस वक्त अदम इस्तेहकाम हो रहा है, जो सियासी मामला खराब हो रहे हैं, जो इस वक्त आप सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया की बात करें या हर जबान की बात करें, हर आवाम जो है उनकी जबान पर यही है कि ये सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इनको अवाम का ख्याल नहीं है। तो इसलिए अवाम का ख्याल करने के लिए सियासतदानों को मैदान में आना पड़ेगा। अपोजिशन को, चाहे वो अपोजिशन के लोग हैं चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको आना चाहिए और टेबल पर बैठकर अवाम के लिए, अवाम के जिन वोटों से वो सिलेक्ट होकर अवानों में आते हैं, उनका ख्याल रखते हो, अवाम को बेहतर से बेहतर फायदा पहुंचाने के लिए वो खुसूसी तौर पर जो है बैठे, आपस में सारी अपने जो अपने खलशे हैं, जो अपना उनका आपस में जो इक़्तिदार की जंग है उसको भूल जाएं वक्ती तौर पर। उसके बाद वो अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ ऐसे मामला करें ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल दिखाई दे रही है या आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, जो माशी हालात जो है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के हवाले से तमाम सियासतदानों को एक पेज पर होना पड़ेगा। सियासतदानों को एक पेज पर होना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम, IMF, माशी बहरान, कर्जों का बोझ, सियासतदानों का किरदार, अवाम का ख्याल, इक़्तिदार की जंग। मियां आमिर जमील, आप इन सब पॉइंट्स पर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।